Salam Javano. So in this question, they're asking you to determine the flux density at different points along the straight line, and they're asking you to start from point P. Now, what you do is to measure the flux density, you know you need a Hall probe. So you'll put a Hall probe here. You'll connect this coil to a power supply. And how will you hold the Hall probe here? That is a question that should be in your mind. And then how will you change P? And then what's going to happen next? And that is the experiment that you have to design. They've given you this relationship, which is B is equals to K and I e raised to power minus alpha P, where they've just defined everything for you. B is the flux density, K is a constant, alpha is a constant, I is the current, N is the number of turns. And you have to determine a relationship between B and P. So flux density and the distance. So all of the things, keep in your mind, should be kept constant. And then you have to tell us how you will calculate the value of alpha and K. That you will know when you rearrange this equation into a straight line equation. Right now, it's not a straight line equation because of this e raised to power thing. But we will convert into a straight line by taking logs on both sides. Now, to show you the design of this experiment, this is how it should be. This is the bench. The magnet is placed. The coil is connected to your power supply, an ammeter. The stand holds the Hall probe at that fixed position. You will adjust the Hall probe till it gives you a maximum reading. And then you will change the distance P, and you're going to measure P using a meter rule. So if you have a very well-defined diagram, believe me, the examiner will give you all of the marks right over there. Let's go ahead, define the problem. Independent variable is P because you're going to change the distance. Dependent variable is B because you are going to measure B. And the control variable could be current, could be the number of turns as well. Number of turns they've already made for you, so it's better that you write current. Method of data collection. Hall probe is held above the poles of the stand. The ruler is used to measure P. Hall probe is used to measure B. Adjust Hall probe so it gives maximum reading. A DC supply is attached in series with the coil and an ammeter to measure the current. The position of the Hall probe is changed for multiple values of P and B. So basically, when you change the position of the Hall probe, P will change, and as a result, B will change. Now, in your analysis, you have to pick up that equation again, and now you have to tell us how you'll get the value of K and alpha. So, because it's E, therefore you have to take natural log on both sides. That means ln on both sides. And one thing which I must tell you, which is the power rule, which is ln e raised to power t, for example, you can write this as t ln e, and ln e is 1. So natural log of b should be equal to natural log of this whole thing. Remember that k, n, and I are multiplied with e raised to power minus alpha p. So the multiplication sign converts to a plus, then you take a natural log. So ln k and I plus ln e raised to power minus alpha p. Now the power comes down, just like I did over here, and ln e is 1, so you just get minus alpha p plus ln k and I. P जो था वो independent variable था, therefore P is on the x-axis, and ln B or B was the dependent variable, so ln B is on the y-axis. Now if you compare it with the straight line equation, let me write it down for you. Y is equals to mx plus c. So मुझे बताओ, is the gradient positive or negative? It's negative. In fact, the gradient is minus alpha. So it should be a straight line down like this, not a straight line going up, straight line down. Why? Because the gradient is negative. And the y-intercept, which is wherever this line intersects the y-axis, is going to be ln k and I. सही है जवानों? So gradient will be minus alpha और y-intercept will be ln k and I. अब हमें तो k की वैल्यू चाहिए थी. So याद रखो एक चीज़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे, कि if I say that a is equals to ln q for example, तो ln की जो बेस होती है वो e होती है. आप q को लिख सकते हो, q is equals to, ये e चला जाएगा दूसरी साइड पे, and it will become e raised to power a. So this e goes to the other side and pushes a in the power. So e raised to power a, और यहाँ पे q बच जाएगा. इसको एंटी लॉग कहते हैं. And if you start from here, if you have q is equals to e raised to power a, और अगर आपको नजर आ गया कि e है और आपने नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, तो लो ln q should be equal to ln e raised to power a. Now use the same rule. क्या बताया था कि पावर के साथ क्या होता है? अगर नेचुरल लॉग लग जाए पावर नीचे आ जाती है. सो ln q would be equal to a ln e,
और ln e क्या होता है? ln e आपको मालूम है 1 होता है. So ln q would be equal to a and you're back to the same thing where you started from. So अगर ln q is equals to a लिखा हुआ है और आपने ln से जान छुड़ानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है कि ln की जो बेस है वो e होती है. सो आप e को उठा उधर ले जाओ, यू विल गेट q इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर a एंड दैट शुड बी इट. और यहाँ पे बिकॉज y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ln k n i, मुझे k की वैल्यू चाहिए, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस ln. आई नो द बेस इज e, सो e रेज टू पावर y इंटरसेप्ट शुड बी इक्वल टू k n i, and then the value of k will be e raised to power y intercept over ni. And alpha की value निकालनी, that is negative gradient. Relationship is valid if it is a straight line with a negative gradient. Additional detail, keep the current very high. It should also be constant. Use a large number of turns because आपको मालूम है कि जितना number of turns ज़्यादा होंगे उतना field strong होगा. Line of sight must be perpendicular to the ruler because you're trying to measure a distance. Hall probe must be calibrated in a known magnetic field. Remember this point always. Do not touch the coil because it'll be hot, or you could wear protective gloves. Always remember, additional detail में हम बताते हैं कि हम experiment को repeat करके multiple values कैसे लेंगे. So we will repeat the experiment for same value of P, एक ही distance पे रख के हॉल प्रोब को रिवर्स करेंगे. हॉल प्रोब की 2 रीडिंग्स आएंगी, उसकी एवरेज रीडिंग विल बी द रीडिंग दैट यू विल कंसिडर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन. Alright, Giovanni, let's have a look at question number 2. They've attached 2 capacitors to a voltmeter, and you can see there's a power supply and there's a double pole throw switch. It can connect here, it can connect here. But you don't need to worry about the question now because it's not paper 4, it's paper 5. So you just have to, they'll give you the readings, you just have to make a graph and solve. So they're saying that x is equals to c over n, where x is the total capacitance, which is given by the capacitance of one capacitor divided by the number of capacitors. आप P और Q के दरमियान में capacitors जब सीरीज में चेंज करोगे तो आपको पता है कि उसके लिए divided by the number of capacitors हो जाता है. But even then, if you don't know that, you don't need to worry because it's not paper 4. I'm repeating again and again, it's paper 5. So they will tell you this. They won't assume that you know this. So x equals c over n, and it is suggested that v and x are given by this equation, which is y is equals to x plus y into v, where e is the EMF. A graph is plotted of 1 over v on the y-axis and x on the x-axis. Be very careful. Because they're saying 1 over v is on the y-axis, you have to get 1 over v out of this equation. Now, how do you get 1 over v? You take v to the other side and get 1 over v, and you bring y e to this side, and you will still get 1 over v on the left hand side. That is exactly what you need to do. So जब आपके पास ये आ गया, उसके बाद what you'll do is you can split this fraction into 2 parts. You know that x plus y divided by ye can be written as x over ye plus y over ye. So I've done that for you. You can split the fraction x over ye plus, now if I write on the steps, it was y over ye, y over y कट जाएगा तो यहाँ पे 1 over e आ जाएगा. So they're saying that you have plotted 1 over v on the y-axis and x on the x-axis. So आप इसको जब equation of straight line के साथ compare करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि straight line equation होती है y is equals to m x plus c. अब y-axis पे आपने 1 over v प्लॉट किया हुआ है, x-axis पे आपने x प्लॉट किया हुआ है, ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा हमेशा. तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज 1 over ye और y इंटरसेप्ट क्या है? 1 over e. Okay, so always remember that when they tell you something is plotted on the y-axis and the x-axis, you have to get that out of the equation. Now, they're saying that they've given you the values of v, n, and they want you to find out what is the value of x and what is the value of 1 over v. So 1 over v तो बहुत ही आसान है. आपने इन values को invert करना और यहाँ पे लिख देना है. These values are 3SF and all of them are 3SF. You could write to 3SF or 2SF. One down कर सकते हो. As long as you've got 2 decimal places, that is what is important. अब x की वैल्यू कैसे आएगी? उन्होंने x का आपको फॉर्मूला बताया था, x was c over n. अब c की वैल्यू ने आपको यहाँ पे दे दी है 2.7 plus minus 0.4 into 10 minus 3 farads. So 2.7 plus minus 0.4 divided by n. Again, it's a fraction, so you can write 2.7 divided by n plus minus 0.4 divided by n. So जब n की वैल्यू 1 होगी तो फिर तो वही लिखा जाएगा. जब 2 होगी तो 2.7 divided by 2 और 0.4 को divided by 2, ये आंसर आ जाएगा. Similarly, as you go down, 2.7 divided by 3, 0.4 divided by 3, you will get these values. इसमें आप एक चीज़ नोट करें, मैंने लास्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर डेसिमल प्लेस 2 कर दिए. Why? Because
पहले I was writing to 1 dp, as you can notice. But when I wrote my 5th and 6th value, तो वो same आ गई. याद रखिएगा, two values cannot be same. All values have to be unique. इसलिए they in paper 5 they allow you to use a mix of significant figures. So यहाँ पे अगर आपने 1 decimal place यूज़ किया है तो आप आगे जाके 2 decimal place यूज़ कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है. Now 0.54, उसके आगे एरर 0.1 और इसका भी एरर 0.1. यहाँ पे वो वाले रूल्स एज सच अप्लाई नहीं होते जो आप पेपर 2 में अप्लाई कर रहे होते हो, बिकॉज यहाँ पे यू कैन हैव दीज प्रॉब्लम्स वेयर दो वैल्यू सेम आ रही हैं. तो क्या करें, आप सेम लिखें. अगर रूल को फॉलो करें नहीं, आप डिफरेंट लिखें और एरर को आप 1SF पे लिखें जिस तरह आप पहले लिखते थे. सो रिमेंबर दैट इन पेपर 5 यू हैव अ लॉट ऑफ लीवे. दैट इज़ वाई इसे पेपर 5 में स्कोर करना बहुत आसान होता है. अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और आपके पास 1 और v आ गई, और आपने एक चीज़ सीख ली यहाँ पे कि कभी भी दो वैल्यू सेम आ जाएं तो वो सेम नहीं लिखी जाएंगी, वो डिफरेंट लिखी जाएंगी, बिकॉज आपने ग्राफ प्लॉट करना है x का विथ 1 और v. दो x की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, टेबल में दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती. दिस यू ऑल्सो नो फ्रॉम पेपर 3. सही है. सो इफ दीज टू वैल्यूज वर नॉट द सेम तो फिर मैं 1 dp भी लिखता. ये याद रखिएगा. अब ग्राफ प्लॉट करने की बारी. सो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है जवानों, बिल्कुल जिस तरह आप ओ लेवल से सीखते हुए आ रहे हो. 1 और v इज ऑन द वाई एक्सिस, x इज ऑन द x एक्सिस, और x में एरर है तो एरर बार जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगी. ये याद रखिएगा कि एरर जो है वो आपकी x की वैल्यूज में, तो एरर बार जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी. मैं आपको दिखाता हूँ. हैव अ लुक एट दिस. ये आपका ग्राफ बन रहा है. सही है. आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हाथ से बनाओ. अच्छी बात होती है पेपर 5 में, देव ऑलरेडी मार्क द स्केल फॉर यू. सो आपको वो स्केल तो फिर से मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने वैल्यूज़ प्लॉट करनी होती हैं. सो मैंने वो कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं आपके लिए. फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू थी 0.45 वाली, और 0.45 के अंदर एरर था 0.1 का मेरे ख्याल से. तो ये 0.1 आगे गए हैं, 0.1 पीछे गए हैं, 0.55 एंड 0.35. एंड ऑन द वाई एक्सिस यू हैड द वैल्यू 0.33. Similarly over here, this was 0.55, and then you went one box ahead and one box behind. So this value was actually not exactly over here. It was slightly over here. That's why आपको ये वाली edge थोड़ी सी इस लाइन के पीछे नज़र आ रही है और ये वाली edge थोड़ी सी इस लाइन से पीछे नज़र आ रही है, because ये point exactly center में नहीं है. Now this point that I've plotted, ये ऑल्दो टेबल में 0.7 लिखा हुआ है, बट व्हेन आई डिड इन द कैलकुलेटर वाज 0.675. अब मैंने कहा मैं जहाँ पे मैं इन दोनों को वो 2 डेसिमल प्लेस पे लिख रहा हूँ, तो इसको भी मैंने फिर 2 डेसिमल प्लेस से प्लॉट कर दिया. अगर आप इसको 0.7 में प्लॉट कर दोगे तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है. सो दिस हैज़ बिन प्लॉटेड एट 0.675 एंड इन द टेबल आई सेड 0.7, सो यू कैन इवन मेक इट एट 0.7 एंड चेंज दिस अकॉर्डिंगली. एंड देन इफ़ यू मूव अहेड, दिस इज़ एट 0.9, और देन अगेन 0.1 का डिफरेंस है. Error bar horizontal है और y axis value 0.43 है. And similarly you go to this point, this is at the 0.51 level, y axis 0.51 पे you can check it from the table, and you can get the last point as well, which is at the 0.83 mark, और उसके अंदर error बड़ा है. That is why you see कि उसकी error bar भी बड़ी है, और दो error bars जो हैं वो 0.1 represent करती हैं. Now, once you have plotted all of these values, अब आप क्या करोगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओगे. लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए जवानों याद रखो that you're looking at the central values. So center में वो वाली वैल्यू है. मैं नीचे जाता हूँ. सेंट्रल वैल्यू का मतलब होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है. उप्स, ये वाली वैल्यू, जिस तरह ये वाली वैल्यू, ये आपकी सेंट्रल वैल्यूज, बिल्कुल जिस तरह आप ओ लेवल में करते हो, जिस तरह आप पेपर 3 में करते हो. पेपर 3 में एरर बार तो नहीं बनाते, तो आप एक्चुअल वैल्यू को देख रहे होते हो और आप उसको देख के बेस्ट फिट लाइन बना देते हो. बेस्ट फिट लाइन वो ऐसी लाइन होती है जो बहुत करीब वो सारे के सारे पॉइंट से, जितना करीब होगा उतना अच्छा है. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट की जी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव और बिलो होने चाहिए. सारे पॉइंट्स लाइन के बहुत करीब होने चाहिए. जैसे सारे पॉइंट्स लाइन के बहुत करीब आते हैं वो खुद ही ऑलमोस्ट इक्वली स्प्लिट हो जाते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जी कि 3 नीचे हों तो 2 ऊपर हों, या 3 ऊपर हों तो 3 ही नीचे हों. ऐसा कोई रूल नहीं है. ऑल पॉइंट्स मस्ट बी एज क्लोज टू द लाइन as possible. सही है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फिट लाइन. अब इसी के ऊपर आपको वर्स्ट फिट लाइन भी बनानी होती है. मैंने इस पर इसलिए नहीं बनाई बिकॉज वो ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाना था, बट इन द पेपर यू ओनली गेट 1 ग्राफ. सो आपने इसी के ऊपर वर्स्ट फिट लाइन बनानी है. वर्स्ट फिट लाइन कैसे बनाई जाती है, ये आप एरर बार देख रहे हैं, इसका ये एंड, इसके इस एंड को आप जोड़ सकते हो इसके इस साइड से,
या इस एंड को जोड़ सकते हो इस साइड से. ऑपोजिट एंड्स को जोड़ना होता है. दिस इज योर वर्स्ट फिट लाइन. एरर बार्स जो होती हैं उनसे वर्स्ट फिट लाइन बनाई जाती है. और एरर बार्स की एक्सट्रीम्स को जोड़ना होता है. मतलब अगर ये एक्सट्रीम राइट वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली वैल्यू यूज़ करोगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट यूज़ करो तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट यूज़ करोगे. दिस इज इन केस द एरर बार्स आर हॉरिजॉन्टल. अब आपका सवाल जहन में हो सकता है कि जी व्हाट इफ द एरर बार्स आर वर्टिकल. अगर एरर बार्स वर्टिकल हो फिर क्या करेंगे? अगेन सेम अप्रोच. मैं वर्स्ट फिट लाइन की बात कर रहा हूँ. सेम अप्रोच. इफ यूजिंग द टॉप मोस्ट वैल्यू देन यू विल यूज द बॉटम मोस्ट वैल्यू. इनको जोड़ दो विद अ स्ट्रेट लाइन, ये वर्स्ट फिट लाइन बन गई. सिमिलरली इफ यू आर यूजिंग द बॉटम मोस्ट वैल्यू देन यू यूज द टॉप मोस्ट वैल्यू. अगर एरर वाई एक्सिस में हो, इधर एरर एक्स एक्सिस में, इसमें इसलिए if you're using the right most value you'll connect it to the left most, and if you're using the left most then you connect it to the right most. Now here I've made the worst fit line for you. I've used the leftmost value and the rightmost value and you can see that this is my worst fit line. Worst fit line की निशानी ये होती है that it should touch all of the error bars. So you can see, you can see that you can see that it is touching all of the error bars. It's not touching this one. It's almost touching this one. So मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत अच्छी वर्स्ट फिट लाइन बनी है. बट मैंने दूसरी जब बनाई, दूसरी पॉसिबिलिटी वाज एज यू नो कि मैं इसको जोड़ देता विद द राइट मोस्ट वैल्यू विद द लेफ्ट मोस्ट उस नीचे वाले की. तो मैंने वही बना के देखी. इट wasn't as good as this one. But if for you they pass through all error bars, that's great. Remember we're all humans, so हम सब और प्लॉट कर रहे हैं तो हम सब के आंसर सेम नहीं होंगे. So अगर आपकी ये सारी एरर बार्स को क्रॉस कर जाता है, चाहे वो लेफ्ट एंड राइट वाला हो जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, कि अगर आपने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट वाली ली है एंड इट क्रॉसेस ऑल एरर बार्स, you're good. If राइट मोस्ट हो और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट हो and you made the straight line, it crosses all error bars, you're still good. And if you've done it like this, you're still good. Remember, this is just one mark. So I will not lose my sleep. In the paper, do not lose your calm and your peace over कि जी मेरी वो लाइन तमाम एरर बार से क्रॉस क्यों नहीं करी, करीब से गुजर गई, बहुत शुक्र अदा करे. एक नंबर है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली एक और मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आप मार्क्स देखें, 3 मार्क्स है. एक नंबर है इसका, एक मार्क है इसका, और एक मार्क है इसका. प्लीज़ डू नॉट लूज योर स्लीप ओवर कि जी मुझसे एरर ही कैलकुलेट नहीं हो रहा. आप मेरी तरह सारे 0.2 0.3 लिखा है, 0.1 लिखा है. अगर ना हो, पेपर को ख़त्म करना है. पेपर में टाइम ज़ाया नहीं करना कि जी मैं एरर कैलकुलेट करता रह गया इसलिए मुझसे आगे वाला पार्ट हुआ नहीं. आप कितने पार्ट कितने मार्क्स के ऊपर स्टक हो गए? 1 मार्क के ऊपर. इज़ इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट. सिमिलरली इसी तरह वर्स्ट फिट लाइन के लिए भी वो 1 मार्क है. ये देखो, मैं आगे दिखाता हूँ, हैव अ लुक. एक वर्स्ट फिट लाइन का मार्क, एक बेस्ट फिट लाइन का मार्क. डोंट वरी, it's easy to score. That's why I always say it's very easy to score in paper 5 and paper 3. सही है. उसके बाद क्या करना है जवानों, आपने बेस्ट फिट लाइन बनाई हुई है. बेस्ट फिट लाइन के ऊपर से 2 पॉइंट्स उठा लो. मैंने उठाए हुए हैं. I took this point over here and I took this point over here, I think this one. और मैंने ये बेस्ट फिट लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहाँ पे, और मैंने बेस्ट फिट लाइन की फिर वैल्यू निकाली है जो आती है 220. वर्स्ट फिट लाइन तो बहुत ही आसान है ग्रेडियंट निकालना. वजह क्या है? आप एग्जैक्ट एरर बार को यूज़ कर रहे होते हो. सो यहाँ पे एरर बार हमने ये वाली यूज़ की. सो मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और मैंने नीचे ये वाली एरर बार यूज़ की. मैंने इसके कोऑर्डिनेट देख लिए 0.55 और 0.33. तो वो बहुत आसानी से निकल आते हैं. एरर बार के थ्रू वर्स्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. Once you have the gradient of the best fit line and you have the gradient of the worst fit line, gradient of best fit line is the actual value. Gradient of the worst fit line क्यों निकालते हैं? वो इसलिए निकालते हैं because they will always ask you to include the absolute uncertainty in your answer. अब वो absolute uncertainty निकालने के लिए आपको worst fit line gradient चाहिए होता है. Why? Because the gradient of the best fit line minus the gradient of the worst fit line will give you the error. याद रखना है वाला फॉर्मूला. और याद रखो, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्स्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट ज़्यादा आ रहा है, बेस्ट फिट लाइन ग्रेडियंट कम आ रहा है. मैंने माइनस किया दोनों को, मेरा आंसर नेगेटिव आ गया.
प्लीज़ परेशान ना होइएगा, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप उसको पॉजिटिव लिख दें. 66 आए, एरर 1 ऐसे पे मैंने 70 लिख दिया, और ये 220 मैंने 220 वैसे का वैसे ही लिख दिया. गॉट इट? सो याद रखो, एरर्स ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव एंड डजंट मैटर कि ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट लाइन ज़्यादा या कम है, आपने माइनस करना है सिर्फ एरर निकालने के लिए, और जो एरर आए उसको पॉजिटिव ले लेना है. नेक्स्ट, moving on, and remember that you have to draw the best fit line and the worst fit line on the same graph, and you have to clearly label कि जी ये मेरी best fit line है और ये मेरी worst fit line है. Now, the y-intercept of the best fit and include the uncertainty. Again, uncertainty निकालनी है y-intercept में, तो मुझे worst fit line का y-intercept निकालना है. अब y-intercept निकालने के लिए use y is equal to mx plus c, तो c is equals to y minus mx. अब ये best कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने gradient best fit line का लिया. आप ऊपर जाके देखना, जहाँ ग्रेडियंट निकाला है मैंने वही वाले कोऑर्डिनेट्स उठाए हैं, y की वैल्यू लिखी है, x की वैल्यू लिखी है, और ये बेस्ट फिट y इंटरसेप्ट आ गया. c वर्सेस y माइनस m वर्स इंटू एक्स, ये मैंने वर्स फिट ग्रेडियंट पहले निकाला हुआ था. ऊपर जाके देखना, जहाँ मैंने वर्स फिट लाइन का ग्रेडियंट निकाला है, उधर जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, मैंने वही कोऑर्डिनेट y और x उठाए. आई कैन जस्ट गिव यू अ क्विक टूर. पीछे जाओ और ये देखो, ये मैंने ये वाली वैल्यू, ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए थे वर्स फिट के लिए, ग्रेडियंट के लिए. तो आपका काम ऑलरेडी हो चुका होता है, आपको आगे और कुछ नहीं करना होता. मैंने ऑलरेडी ये दो कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए थे फॉर बेस्ट फिट लाइन, तो काम ऑलरेडी हुआ था. मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया, मैंने ये वाले पॉइंट्स यूज़ किए, मेरे पास वाई इंटरसेप्ट बेस्ट फिट लाइन आ गया. मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया, मैंने ये वाले पॉइंट्स यूज़ किए, मेरे पास वाई इंटरसेप्ट वर्स्ट फिट लाइन आ गया. सिर्फ अक्लमंदी इतनी चाहिए कि आप इसको x की जगह ना डाल दें और इसको y की जगह ना डाल दें, बिकॉज दिस इज x एंड दिस इज y. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू वरी अबाउट, कि आप उल्टा ना डाल दो उसको. सो आप जब डालेंगे जी, तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी, बेस्ट फिट वाई इंटरसेप्ट 0.224, वर्स्ट फिट वाई इंटरसेप्ट 0.172. नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम एंड यू विल गेट द एरर विच इज 0.05. इसलिए हम वर्स्ट फिट लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, बिकॉज वो क्वेश्चन में कहता है इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर आंसर. अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर आ गया जिसमें वो नहीं कहता, ये ग्रेडियंट में नहीं लिखता कि जी इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो मत निकालिएगा वर्स्ट फिट लाइन, ज़रूरत ही नहीं होगी उसकी. अगर वो वाई इंटरसेप्ट के साथ ये ना लिखे कि इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो वर्स्ट फिट वाई इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको. रिमेंबर दिस. नाउ यू हैव दिस. नाउ दे सेइंग दैट यूज योर आंसर्स टू A, C3 and C4 and determine the value of E and Y, include an appropriate unit for Y. सो आपको पता है कि 1/E जो था वो आपका वाई इंटरसेप्ट था, आपने ऊपर निकाला था. 1/E was your y intercept. y intercept की वैल्यू आ गई 0.22, तो e की वैल्यू क्या आ गई 4.5. अब वोल्ट मैंने पहले लिख दिया बिकॉज मैंने ऊपर डायग्राम में जाके जब देखा तो वो EMF था. अब मुझे इतना तो पता है कि EMF को यूनिट वोल्ट होता है, तो उसने भी यूनिट वोल्ट लिखा हुआ है. सो जब वो कहता है इंक्लूड एन अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर y, a lot of people make this mistake. They start thinking, they start deriving the unit. Don't do that. आपको पता है कि कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, मालूम है. सो y जो है, अगर डायग्राम में जाके देखो y क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, फैरेड ही होगा ना. अब 1/ye was your gradient. This was the value of your gradient. अच्छा याद रखो, जो एक्चुअल वैल्यू या बेस्ट वैल्यू होती है ना, वो यूज़ करनी होती है जब भी वैल्यूज निकालनी हो. सो e की वैल्यू आपके पास थी 4.5, 220 आपके पास है, y निकाल लें 1 × 10⁻³ और आगे यूनिट लिख दिया f. Remember that this answer can be different for everybody. Even if you look at the marking scheme, they will never give you the value of y because they don't care. उसके मार्क्स तो देखें आप, एक नंबर है. वो मार्क किस लिए, क्या बच्चे ने ये किया या नहीं किया. So let's say आपका ग्रेडियंट गलत आ गया, गलत आ रहा है, बिल्कुल ही गलत आ रहा है, वो उसके हिसाब से चेक करेगा कि y की वैल्यू क्या है और क्या बच्चे ने यूनिट लिखा है नहीं. If you've written the unit, you will get the mark. Even if your value is right and you forget the unit, you will not get the mark. That's why I'm saying, please don't worry too much about the unit. They always give a diagram. Go to the diagram. Most probably you already know what that quantity is. So no need to derive the unit and no need to worry कि पता नहीं unit नहीं निकल रहा. And let's have a look at the last part. Determine the percentage uncertainty in y. So y was equals to 1 / gradient into e. Correct? Because this was the gradient and you multiplied e with it. And then you brought both of them down, took y over here, and that is how you got the value of y. So if you want to calculate the percent uncertainty in y, you know percent uncertainty in y should be equal to percentage uncertainty in m plus the percentage uncertainty in e. ये 1/, से कोई फर्क नहीं पड़ता. परसेंटेज एरर में इसका परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर ऐड होगा और इसके अंदर परसेंटेज एरर निकल आएगा. अब परसेंटेज एरर द ग्रेडियंट निकालना तो बहुत आसान है.
आपको ग्रेडियंट की वैल्यू भी मालूम है, ग्रेडियंट का एरर भी मालूम है, परसेंटेज एरर नहीं निकालना है। अब आप यहाँ पे देखो आपका ई क्या था, ई वॉज 1/c, ई वॉज 1/y इंटरसेप्ट। सो परसेंटेज ई किसके बराबर है, परसेंटेज सी के बराबर है। ये सी क्या चीज़ है, ये वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है, एरर भी है। सो परसेंटेज ई भी निकल आएगा यहाँ से, परसेंटेज एम भी निकल आएगा, बिकॉज यू हैव द वैल्यू, आई हैव डन दैट फॉर यू। सो ग्रेडियंट में एरर था 70, ग्रेडियंट की वैल्यू थी 220 इंटू 100%। जो वाई इंटरसेप्ट था उसमें एरर था 0.05, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.22 इंटू 100%। ऐड करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख दीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर परसेंटेज एरर। Remember, the value is not important. They need to see, have you added them properly, yes or no? That's all. They're not concerned about the value. Best of luck. So my percentage error turns out to be 54.5%. But if your percentage errors are different, no worries.